Morning once again, and now I'm going to start our class. Today's topic is, the new chapter we have to start, dissolution of partnership firm. Okay, so dissolution of partnership firm and dissolution of partnership, these are the two things which we have to understand very well. Okay, so far students, from the change in profit sharing ratio to the chapter death of an old partners, what we had studied in the previous classes, these were the topic dissolution of partnership. Because dissolution of partnership is what? When old agreements comes to an end. Okay, when old agreements between the partner comes to an end is called dissolution of partnership. But it does not mean that business will be closed down. But here today we have to start dissolution of partnership firm. What we have to start? Dissolution of partnership firm. Here firm word is added, and in previously I was talking about only dissolution of partnership. So partnership is based on agreement between the partners. Okay, and when that agreement comes to an end, this is called dissolution of partnership. But today we have to discuss with dissolution of partnership firm, not partnership. Okay, here dissolve means wind up हो जाना. What? For what we are going to study wind up? Partnership firm means business entity. Okay, when our business will completely close down, this is called dissolution of partnership firm. Okay, so here you will see, according to Indian Partnership Act, it makes distinction between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. So these are the two different things. Okay. In case of dissolution of partnership, only agreements ends, but they may continue the existing business by making a new agreement, right? But in case of dissolution of partnership firm, they do not make a new agreement, because they close all the books of the account, and completely firms will be closed down or wind up. They will not continue the existing business. All the partners will leave the firm, right? So now see one by one how to make the accounting treatment and what are the concepts at the time of dissolution of partnership. Okay, here in front of you, dissolution of partnership means, note it carefully, just I am going to read here. So here student, dissolution of partnership means termination of the old partnership agreement. But keep in mind what I have written over here, not firm. I am talking right now dissolution of partnership, not dissolution of partnership. So be careful, because in board exam every year, board exam used to ask the question from these two topics. The student get confused how to give the answer. So okay. So now see here, dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership means here termination of the old partnership agreement. Okay, what termination? Old agreement between the partners only, and a reconstruction of the firm due to admission, retirement, and death of partners. So this means they end the old agreement and make a new agreement at the time of admission, because when you will give admission to a new partner, it means old agreement will come to an end. Okay, old agreement end हो जाएगा, and then you make a new agreement taking into the new partner in the case of admission. So okay, like that in retirement, when a partner leave the firm by giving a notice in advance or prior, so this means
कि earlier agreement was between the three partners, but one partner when retires, so in future they have to make a new agreement between the remaining partner. मीन्स जब भी कोई रिटायर होता है तो पुराना एग्रीमेंट ओवर हो जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले तक वो सभी लोग मिलकर आपस में एग्रीमेंट किए थे। जब एक पार्टनर छोड़कर जाएगा तो एग्रीमेंट तो खत्म हो गया और फिर से नया एग्रीमेंट बनाएंगे और आगे बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। लाइकवाइज डेथ ऑफ एन ओल्ड पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट तो ओवर हो जाएगा, खत्म हो गया। फिर बचे हुए पार्टनर अगर चाहते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू करें, सो वो लोग नया एग्रीमेंट बनाएंगे आपस में और फिर वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड, देखो जैसे ही एग्रीमेंट एंड होता है, ओल्ड एग्रीमेंट एंड, देखो पॉइंट नोट करना ध्यान से, द पॉइंट when old agreement comes to an end is called dissolution of partnership, and when the remaining partner or existing partner make a new agreement or reconstruct means make a new agreement of the firm, ठीक है, this is called reconstitution of the partnership. Reconstitution of the partnership, you have remember, you must have remember कि after the fundamental chapter we were doing a study change in profit sharing ratio, admission of a new partner, retirement and death. These all are reconstitution. But before reconstitution, dissolution of partnership is must. जब तक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स कि अगर ओल्ड एग्रीमेंट जब तक खत्म नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तब तक रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। सो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स दैट्स ओनली टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ड्यू टू एनी रीजन, due to change in profit sharing ratio among existing partner, or due to admission of a new partner, or due to retirement or death of an old partners. Okay, now here dissolution of, second point you will notice, dissolution of partnership may or may not result into the closing down of the business, as the remaining partners may agree to carry on the business under a new agreement. That's it. Okay, so same point is saying here कि dissolution of partnership के केस में existing partner वो चाहे तो बिजनेस बंद कर दे या चाहे तो बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं बाय मेकिंग अ न्यू एग्रीमेंट। ओके, सो इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट इज नॉट कंपल्सरी टू क्लोज डाउन द बिजनेस, ओके, बिकॉज इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली एग्रीमेंट एंड्स, नॉट बिजनेस एंड्स। Business may continue by making a new agreement between or among the existing partners. Okay, so you should note it down, student. So have you taken the SS of this slide? Utpanna, have you taken SS? Yes, sir. Everyone? Ashutosh, Giri. Yes, sir. बेटा डन, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू शेयर. So here you will see dissolution of partnership firms. So in previous slides what we had studied dissolution of partnership only, but in this slide we will start doing a study dissolution of partnership firm, right? So here you have to be careful what are the differences. So here it is saying that the firm closes down its business and comes to an end. Got it? Dissolution of partnership में क्या था? Termination of old agreement only. Business may not end. ठीक है? But here it is compulsion. It is compulsory that the firm closes down its business and comes to an end. यानी पूरी तरीके से बिजनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है? On the dissolution of the partnership firm, the assets of the firm are sold. जब बिजनेस बंद होता है, डिसॉल्व होता है,
तो जितनी भी एसेट्स होती हैं बिजनेस की आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, और उसी पैसे से, एसेट्स को बेचने से जो पैसा मिलता है उस पैसे से हम जितनी लायबिलिटीज होती है सबका पेमेंट कर देते हैं। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, और जो बच जाता है पैसा, दी अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर सेटल्ड। तो सारे लायबिलिटीज यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद भी पैसा बचता है, तो जितने हमारे पार्टनर्स हैं उनका सेटलमेंट किया जाता है जब बिजनेस बंद होता है तो। ठीक है, सो डस in case of dissolution of partnership the firm may continue. Got it? So it is saying that thus in case of dissolution of partnership only the firm may continue. That is, it does not mean the dissolution of firm. Okay, means dissolution of firm and dissolution of partnership both are different. But in case of dissolution of the firm, the partnership is automatically dissolved. जैसे ही फर्म बंद होगा तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि फर्म होगा तभी पार्टनरशिप होगा। जब फर्म ही बंद हो गया तो पार्टनरशिप यानी एग्रीमेंट कोई रहेगा ही नहीं, because partnership is based on agreement between the partner. As we know that as per the Indian Partnership Act 1932, it is clearly defined that it is an association between persons who have agreed to share the profit of a business which is to be carried on by all or any of them acting for all. Okay. In the very first line it has been said who have agreed. Agreed means agreement, there must be agreement. ठीक है, if there is no agreement so partnership का कोई बेस ही नहीं होगा। एग्रीमेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिटेन और एक होता है ओरल। पता है आपको कि ओरल जो होता है वर्बल होता है, कहीं उसका प्रूफ नहीं होता, बट रिटेन डॉक्यूमेंट जो होता है, रिटेन एग्रीमेंट, दैट विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। सो जो डीड होता है उसमें सारे टर्म्स कंडीशन लिखे होते हैं। समटाइम्स यू विल फाइंड देयर इज नो ओरल एग्रीमेंट, नो रिटेन एग्रीमेंट। So in that case, we will follow the provision of Indian Partnership Act that if there is no agreement between the partners, in that case, profit and loss should be shared between the partners equally. And if any partner has given advance to the firm in the form of loan, so in that case, that partner will be entitled to get interest on their loan at the rate of 6% per annum. Okay, so we had studied already all these things. So now I hope you are all very clear dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. पार्टनरशिप में सिर्फ इतना ही होता है कि जितने पार्टनर होते हैं उनका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद वो चाहे बिजनेस चला सकते हैं नया एग्रीमेंट बनाकर। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में होता है कि पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है और जितना एसेट्स होता है बिजनेस का वो बेचकर सभी लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिक पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। जब बिजनेस ही नहीं है तो पार्टनर्स कहाँ से आएंगे? ठीक है, सो यू शुड टेक द एसेस ऑफ दिस, टेक एसेस। डन, स्क्रीनशॉट हो गया? श्रेया सिंह, श्रेया सिंह, यस सर, हो गया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, द पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो देखो बेटा, कब कब हम समझेंगे कि पार्टनरशिप इज डीम्ड। यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ध्यान समझना। पार्टनरशिप इज डीम्ड बिकॉज इन द एग्जाम क्वेश्चन में बी आस्क्ड द डिफरेंस और डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस टू टॉपिक। सो हियर यू विल सी फर्स्ट, केवल पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होता है? इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑब्वियसली जैसे ही चेंज होगा एग्रीमेंट, इसका मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया,
तो जैसे पुराना एग्रीमेंट ब्रेक होता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, ठीक है। नया एग्रीमेंट बनने का मतलब ही हुआ कि पुराना वाला एग्रीमेंट ओवर हो गया। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जैसे किसी पार्टनर को हम एडमिशन देंगे तो ओल्ड एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो ऑटोमेटिक अब से नया रेशियो बनेगा, नया एग्रीमेंट होगा, तो पुराना वाला डिसॉल्व हो गया। इन केस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर को निकाल दिया गया किसी वजह से, उसका मेंटल वगैरह या किसी वजह से तो हटा दिया गया, तो भी रेशियो चेंज हो जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर मर गया तो भी वही बात हो गई कि एग्रीमेंट में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, मान लो 3 पार्टनर हैं ABC और कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मीन्स बैंकरप्ट हो गया, मतलब उसकी जो लायबिलिटी है बहुत ज़्यादा हो गई और एसेट्स कम है, तो उसको हटा दिया जाता है और जो भी लॉस होता है उसके प्रॉपर्टी से लिया जाएगा, नहीं होगा तो बचे हुए पार्टनर अपने पास से देते हैं। और बाकी जो पार्टनर बच गए हैं नॉन इंसॉल्वेंट या सॉल्वेंट पार्टनर जो हैं, वो चाहे तो अब आगे बिजनेस चला सकते हैं नया एग्रीमेंट बनाकर आपस में, और चाहे तो बंद कर सकते हैं। तो इंसॉल्वेंसी के केस में भी पार्टनरशिप समझा जाता है कि डिसॉल्व हो गया, क्योंकि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू द बिजनेस। एंड नाउ इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप का आपस में टर्म्स कंडीशन बनाए हैं कि हम लोग 3 साल के लिए ये सब एग्रीमेंट रहेगा, इसके बाद से हम लोग चेंज कर लेंगे, तो जैसे ही वो टाइम खत्म होता है एग्रीमेंट का, वो एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाता है, फिर से नया एग्रीमेंट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सिचुएशंस और द केसेस इन विच वी assume that the partnership is deemed to have been dissolved. Okay, so you should take the SS. Done. Aryan Kushwaha. Aryan Kushwaha, have you taken SS? Aryan. Aryan, are you listening? Priyanshu? Yes, sir. SS हो गया? Yes, sir. Okay. So next, modes of dissolution of partnership firm. कौन कौन से ऐसे मोड हैं जिससे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है? क्योंकि आज का टाइम ज़्यादा लग गया, लोग क्वेश्चन पूछने लगे, नहीं तो आज काफ़ी कुछ हो गया होता। So modes of dissolution of partnership firm. So you will find first without the intervention of the court. So there are 2 modes, one with the intervention of the court and then without intervention. So पहले हम लोग पढ़ते हैं without intervention of the court, ठीक है। यहाँ फर्म की बात कर रहे हैं, पिछले स्लाइड में हम लोग पार्टनरशिप के बारे में बात किया, यहाँ हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो विदाउट इंटरवेंशन यानी बिना कोर्ट के हस्तक्षेप किए कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसमें बिजनेस बंद हो सकता है? पहला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जैसे मान लो कि 3 लोग 4 लोग मिलकर आपस में एक किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने का एग्रीमेंट करते हैं, यानी कोई ठेका लेते हैं, मान लो कोई मॉल बनवाना है, तो अकेले कोई एक पर्सन तो बनवाएगा नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम, कोई प्लम्बरिंग का काम, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम, मतलब तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो सब लोग जो हैं मिलकर वो एग्रीमेंट किए कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें करना है पार्टनरशिप के आधार पे। तो जैसे ही वो आपस में एग्रीमेंट मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट किए थे और जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो आपका बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है। तो कह रहा है अ पार्टनरशिप मे बी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। तो यहाँ पर जब सभी पार्टनर्स, चूँकि जो मैंने एग्जांपल दिया वो आगे आएगा, कुछ पर्पस होता है, वो पर्पस का होता है, उसमें भी यही चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब जब सभी आप पार्टनर आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं कि नहीं अब बिजनेस हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, बंद करना है, तो दे कैन डिसॉल्व बाय एन एग्रीमेंट। दूसरा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन।
कभी कभी फर्म का डिसोल्यूशन करना, डिसॉल्व करना कंपलसरी हो जाता है। वो कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं, लेट्स सी। पहला, व्हेन ऑल और ऑल आर वन पार्टनर होंगे, ऑल बट वन पार्टनर, ठीक है। व्हेन ऑल आर ऑल बट वन पार्टनर, ध्यान से समझो, या तो सभी पार्टनर या किसी एक को छोड़कर बाकी सारा, यहाँ एक एल कम लगा हुआ है, आप लिख लेना। एंड ऑल और ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। मान लो 3 पार्टनर है और पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। मान लो तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तब तो बिजनेस बंद होना कंपलसरी है। या मान लो कि 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़कर, मतलब एक नहीं हुआ, 3 में से 2 हो गया, तो अकेला पर्सन जो है वो पार्टनरशिप तो रन कर नहीं सकता। तो जब सभी पार्टनर या उसमें से कोई एक पार्टनर छोड़ करके बाकी सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो बिजनेस डिसॉल्व करना कंपलसरी हो जाता है। दूसरा, when business of the firm becomes unlawful, गैर कानूनी यानी इलीगल हो जाता है। सो इस केस में भी बिजनेस मतलब अनलॉफुल, जो लॉफुल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो उसको बंद करना पड़ जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल निकाला जिसकी वजह से अब ये बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, तो उसको ऑटोमेटिकली डिसॉल्व समझा जाएगा, ठीक है। Third, on happening of an event according to section 42, a firm may be dissolved on the happening of any one of the following incidents. On the insolvency of a partner, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी फर्म को डिसॉल्व माना चाहता है। हाँ, चाहे तो रिमेनिंग पार्टनर दोबारा से नया एग्रीमेंट बनाकर कर सकते हैं। ऑन डेथ पर भी डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट टूटा तो फर्म एक तरीके से पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ। तो अब 2 ही पार्टनर हैं, मान लो ए और बी, और एक डेथ कर गया तो अकेला पार्टनर तो बिजनेस नहीं कर सकता, तो डिसॉल्व हो सकता है। कुछ ऐसी केसेस हैं। on the fulfillment of the object for which the firm was formed. So देखो, अभी मैंने एग्जांपल लिया था किसी मॉल को कंस्ट्रक्ट कराने का, वो वाला यहाँ पे सुटेबल होगा कि जिस पर्पस के लिए एग्रीमेंट किया था, पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म किया था, वो पर्पस जैसे ही पूरा होता है वो ऑटोमेटिक एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और बिजनेस बंद हो जाएगा। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, मान लो कि कुछ पार्टनर्स मिलकर 5 ईयर के लिए एग्रीमेंट तो ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा। बाय नोटिस, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट फिक्स्ड, अगर ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं है, सो एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया। और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सो बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि 10 बज गए हैं, अभी दूसरा क्लास भी है, और ठीक है। सो स्टूडेंट्स,